غلیل سے اٹھی جس نے 12 کو ہلایا اور 12 نے پھر پوری دنیا کو ہلایا. اور یہ 12 جب تحریک لے کر آگے نکلے تو اس تحریک نے سرحدوں کو توڑا، ملکوں کو توڑا، ریاستوں کو توڑا اور روم جیسی جوان ریاست کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور بائبل مقدس کے جاننثاروں نے بتایا کہ جو کام ہتھیار نہیں کر سکتے وہ خدا کا کلام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا، دنیا کے ہتھیار جب زخم لگاتے ہیں تو وہ زخم جو ہے وہ آپ کی جان لیتا ہے، لیکن خدا کا کلام جب زخم لگاتا ہے تو وہ زخم زندگی دیتا ہے. یاد رکھیے گا. تو آئیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے جن کے پاس کتاب مقدس ہے مل کر نکالیے گا میرے ساتھ حضرت یوحنا رسول خدا یسوع کا مکاشفہ بکلمہ حضرت یوحنا رسول باب 19 اور آیت 16 سے. مکاشفہ کی کتاب 19 باب اور 16 آیت سے. کلام خدا کے اندر کچھ یوں لکھا ہے. کس کس نے نکال لیا ہے آمین کہیے گا. آمین. یہاں یوں لکھا ہے 19 باب کی 16ویں آیت میں، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. کتاب مقدس کا سماعت فرمایا جانا تمام حاضرین کے لیے خدا کی خاص برکت ہو. بائبل مقدس کی یہ آیت جو ہے ہم سب اس سے واقف ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ آمین. میں آپ کو سکھانے نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں. میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ مل کر ہم برکت کو حاصل کریں. یہ آیت سے کون کون واقف ہے؟ آمین. سارے جانتے ہیں. اور کرسمس کے موقع پر یا کھجوروں کے اتوار کے موقع پر یا اور عام عبادات کے اندر ایک نعرہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ. اب میرا آپ سے ایک سوال رہے گا، اور سوال بڑا منطقی ہے، بڑا لوجیکل ہے. سوال کو ذرا سمجھیے گا. ہم جس ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر ہم اکیلے آباد نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، ہمارے ساتھ اور قومیں بھی جو ہیں اس ملک کے اندر رہتی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہیں وہ مسلمان ہیں جو اکثریت کے اندر آتے ہیں. دوسرے نمبر پر مسیحی ہیں جو اس ملک کے اندر دوسری بڑی تعداد ہے. اور تیسرے نمبر پر اور مذاہب آتے ہیں. لیکن ان تمام مذاہب کے اندر جب ایک مسیحی جو ہے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، تو یاد رکھیے گا غیر اقوام جو ہیں وہ ایک سوال کرتی ہیں. اور سوال کیا کرتی ہیں کہ اگر خداوند یسوع بادشاہ ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ثابت کر دیں. بات کی کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ ہونے کے لیے ایک کرائٹیریا رکھا جاتا ہے. بادشاہ ہونے کے لیے کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں. اور وہ شرائط کیا ہے کہ بادشاہ کے لیے محل ضروری ہے، بادشاہ کے لیے دولت ضروری ہے، بادشاہ کے لیے نوکر چاکر ضروری ہے، بادشاہ کے لیے شاہانہ جو ہے وہ انداز ضروری ہے، بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری ہے، بادشاہ کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی رکھنا ضروری ہے، بادشاہ کے لیے فوج ضروری ہے. لیکن جناب آپ خداوند یسوع کو بادشاہ کہتے ہیں اور بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں، تو ذرا ثابت تو کر دیجئے وہ کیسے بادشاہ ہیں. ہمارے مسلمان بھائی اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع کی جیب میں تو ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، غربت کی زندگی انہوں نے بسر کی، مفلسی کے عالم میں وہ رہے، تو وہ کیسے بادشاہ ہو گیا؟ انہیں نبی کہیں، چلے آپ انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم تب بھی مان لیتے ہیں. آپ انہیں بادشاہ سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانیں گے. آپ نبی کہتے ہیں ہم مان لیں گے. آپ اچھا استاد کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. آپ ایک اچھا جو ہے وہ تعلیم دینے والا کہتے ہیں، ایک اچھا استاد ربی کہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. آپ جو کچھ کہیں گے ہم مان لیں گے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ نہیں مانیں گے. اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو ہر کسی کا نعرہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے. میرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ مسلمان لوگوں کے اندر ہوتا ہے، وہ اکثر اس طرح کی بات چیت چلتی رہتی ہے. اور یہ سوال جو ہے میں لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن اس نعرے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس جواز ضروری ہے؟ آپ
उस चर्च से बाहर निकलेंगे, आपको बहुत से सवालात का सामना करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह को, जनाब मसीह को ये मानता हूं तो मैं क्यों मानता हूं, उसके पीछे वजह क्या है। टाइटल छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है। बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का तो साबित कैसे करेंगे? ना कोई फौज, ना कोई अमीरी, कुछ भी नहीं, एक बड़ाई का बेटा लेकिन है बादशाहों का बादशाह, शरई लिहाज से एक बड़ाई का बेटा कहलाने वाला, यहूदी लिहाज से एक पसमानदा इलाके से, नासरत से जिसका ताल्लुक है, जो एक अच्छा इलाका तस्वर नहीं किया जाता। नासरत जो है वो हुकूमती लिहाज से, कौमी लिहाज से, दीनी लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो थर्ड क्लास इलाका है, और थर्ड क्लास इलाके में से एक बादशाह आ रहा है और बादशाहों का बादशाह आ रहा है। अकल नहीं मानती। बादशाह होने के लिए शाही हस्ब व नस्ब होना जरूरी है। बादशाह होने के लिए तख्त पर विरासत होना जरूरी है। बादशाह होने के लिए आपको जो है आपकी रगों के अंदर शाही खून चाहिए। तो यहूदी भी ये कहते हैं कि मसीही बेवकूफ है, मसीही बेवकूफ है, जो ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। यूहन्ना रसूल ने लिखा और बड़ा खूब लिखा कि उसकी पोशाक और रान पर क्या लिखा है? बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। अब सवाल किस किस को समझ आ गया है कि अब सवाल क्या है जिस पर बात होगी कि खुदावंद यीशु मसीह अगर हम मानते हैं कि वो बादशाहों के बादशाह हैं तो फिर साबित करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखो की महफिल के अंदर चले जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाएं, ये जो डिबेट्स हैं ये यूनिवर्सिटीज लेवल की हैं, जहां पर जो है इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है वो आपस के अंदर जो तसादुम इख्तियार करते हैं, इल्मी तसादुम होता है, तब खुदावंद यीशु मसीह पर ये सवालात उठते हैं कि हाँ, तुम कहते हो वो बादशाह है, साबित कर दो, साबित कर दो, बात खत्म। हम ना तुमसे पूछेंगे, तुम फिर नारे मर्जी जितने मर्जी लगाओ, हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर कहते हो तो बताना पड़ेगा, और अगर बता नहीं सकते तो फिर नारा नहीं लगाना पड़ेगा, नारा छोड़ना पड़ेगा। इस आयत के अंदर दो बातें हमें मिलती हैं, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदावंदों का खुदावंद जो है वो इस आयत का रूहानी पहलू है, बादशाहों का बादशाह जो है वो इस आयत का जिस्मानी पहलू है। लिहाजा आज हम सिर्फ बादशाहों के बादशाह पर गौर करेंगे कि आया खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह है या नहीं, या हम सिर्फ एक खुद ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि वो बादशाहों के बादशाह हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बादशाहत का जो तस्वर है, आइए देखते हैं कि बाइबल बादशाह किसे कहती है। बाइबल की जुबान के अंदर बादशाह कौन है? प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी के एक बड़े ही मायनाज डॉक्टर विलियम रैमसे, जो जुबानों के प्रोफेसर हैं, वो फरमाते हैं कि बादशाह लफ्ज का मतलब है जो है वो ये है कि बादशाह उसे कहते हैं जो सबसे ऊपर हो लेकिन बादशाह से ऊपर कोई ना हो। डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं? बादशाह लफ्ज का मतलब क्या है? जो सबसे क्या हो? ऊपर हो, जो सबसे क्या हो? आला हो, जो सबसे क्या हो? उत्तम हो, जो सुप्रीम अथॉरिटी रखता हो, उसको बादशाह कहते हैं। जो सबसे ऊपर है वो बादशाह है, लेकिन बादशाह से ऊपर फिर कोई नहीं आता। बाकी समझ आ गई बादशाह लफ्ज का मतलब क्या है? जो सबसे क्या है? ऊपर है। अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने बागे अदन के अंदर जब पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो किताब मुकद्दस फरमाती है खुदा ने आसमान को बनाया, खुदा ने जमीन को बनाया, खुदा ने आसमान, चांद, सितारे, समंदर, तमाम मखलूकात को जो था वो खल्क किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि सब चीजें जो हैं खुदा आदम के लिए बना रहा था, लेकिन आदम को खुदा अपने लिए बना रहा था। सब चीजें जो थी इस दुनिया के अंदर, या सब चीजें जो हैं इस दुनिया के अंदर खुदा ने आपके लिए बनाई है, लेकिन आपको उसने इन चीजों के लिए नहीं बनाया, आपको उसने अपने लिए बनाया है। अब खुदा ने जब आदम को बनाया, खुदा ने कहा सब कुछ तेरा है, खुदा ने आदम को अथॉरिटी बख्शी, सो साबित हुआ इस दुनिया का पहला बादशाह जो था वो आदम था, जो सुप्रीम अथॉरिटी रखता था, जिसका इख्तियार सबके ऊपर था। मैंने पहले कहा बादशाह लफ्ज का मतलब
مطلب کیا ہے؟ جو سب سے کیا ہو؟ اوپر ہو، لیکن بادشاہ سے اوپر کوئی نہ ہو. تو آدم سے اوپر کوئی تھا اس وقت؟ آدم سے اوپر کوئی تھا اس وقت؟ آدم سپریم اتھارٹی تھا. آدم اختیار کا اعلیٰ درجہ تھا. آدم کے اوپر سوائے خدا تھا اور اس کے بعد کوئی نہیں تھا. اب بائبل مقدس فرماتی ہے کہ گناہ آدم کی سرشت کے اندر آتا ہے. گناہ آگے اسٹوری سے ہم سب واقف ہیں، میں اختصار کے ساتھ چلوں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لوں. گناہ آتا ہے تو آیت 7 الہام کے اندر آ جاتی ہے کہ ایک آدم کے سبب سے کیا آیا؟ ایک آدم کے سبب سے. میرے ساتھ چلیے گا، آگے بہت برکت ملے گی. آپ کو پتا چلے گا کہ ہم بادشاہ کیوں کہتے ہیں. ایک آدم کے سبب سے کیا آیا؟ گناہ دنیا میں آیا. سو معلوم ہوا کہ پیدائش کی کتاب کے اندر بادشاہ جو تھا وہ آدم تھا، لیکن آدم نے جب گناہ کیا تو اس کے گناہ کرنے کے سبب سے آدم جو تھا وہ گناہ کا غلام بن گیا. بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ اب مزدور کسے کہتے ہیں جو غلام ہوتا ہے؟ مزدور کسے کہتے ہیں؟ ذرا آواز میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو برکت ملے. مزدور کسے کہتے ہیں؟ جو غلام ہوتا ہے. آپ جاب پر جاتے ہیں، آپ اپنے مالک کے اندر رہ کر ایک کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، اور جب کام کرتے ہیں تو پھر اس کمپنی کے اندر وہ بادشاہ جو ہے، وہ لیڈر جو ہے، آپ کا مالک جو ہے، وہ آپ کو معاوضہ دیتا ہے، اور جب معاوضہ دیتا ہے تو آپ اس کے کیا ٹھہرے؟ غلام ٹھہرے. بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ گناہ کی مزدوری. اس کا مطلب ثابت ہوا کہ آدم جو پہلا بادشاہ تھا وہ بادشاہ نہیں رہا، گناہ بادشاہ ہو گیا. ہم میں سے جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے یا ہم سے پہلے جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب گناہ کے کیا تھے؟ غلام تھے. بادشاہ کوئی نہیں ہے. چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چاہے وہ مغل بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی مسیحی بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی ہندو بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے اوپر گناہ ہے اور گناہ کا وہ غلام ہے. گناہ کا وہ کیا ہے؟ گناہ کا وہ کیا ہے؟ اور گناہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. داؤد جیسے جلیل القدر نبی کو نہیں چھوڑا. گناہ نے سلیمان جیسے حکمت والے کو نہیں چھوڑا. گناہ نے نبیوں پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. گناہ نے رسولوں کو نہیں چھوڑا. گناہ نے دیگر لوگوں کو نہیں چھوڑا. پولس رسول جیسا ماہر الہیات کہتا ہے، ہم تو باتوں باتوں میں اکثر سو معلوم ہوا کہ گناہ ایک ایسی پاورفل اور ایسی ہولناک اتھارٹی رکھتا ہے کہ اس سے اوپر کوئی بھی نہیں. وہ اتھارٹی جو خدا نے آدم کو دی تھی، آدم نے گناہ کر کے وہ اتھارٹی گناہ کو دے دی. اب گناہ بادشاہ ہو گیا. کتاب مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کے ذریعہ سے کلام کیا. نبی آئے، پیغمبر آئے، لیکن جو آیا وہ غلام آیا. چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ یوسف ہو، چاہے وہ یعقوب ہو، چاہے وہ داؤد ہو، چاہے وہ سلیمان ہو، سب کی سرشت کے اندر گناہ تھا. سب گناہ کے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے. سرشت کے اندر گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے. اس گناہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. نہ اس نے نبی کو چھوڑا ہے، نہ اس نے پیغمبر کو چھوڑا ہے، نہ اس نے رسول کو چھوڑا ہے. لیکن کتاب مقدس ہمیں اس ایک ہستی کی بابت گواہی دیتی ہے. کتاب مقدس فرماتی ہے، بائبل ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فرشتہ جبرائیل ناصرت کی ایک قواری کے پاس جاتا ہے اور جا کر کیا کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمینویل، یسوع رکھے گی. اب بات کو ذرا سمجھیے گا. مریم مقدسہ کا آگے بیان سنیے گا. جواب کیا آتا ہے؟ میں تو مرد کو نہیں جانتی. ہاں تو رات کے اندر پڑا ہے کہ نبی پیغمبر آئے ہیں، مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے آئے ہیں، لیکن میرا بیٹا کیوں کیسے آئے گا؟ تو کہتا ہے تیرا بیٹا ہوگا. میرے پاس تو خامد نہیں، میرے پاس تو شوہر نہیں، تو کیسے میرا بیٹا آئے گا؟ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے یہ پیغام میرا نہیں، یہ پیغام خدا کا ہے. یہ پیغام خدا کا ہے. اگر یہ نبیوں کی طرح آتا تو خدا مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کرتا. اگر یہ پیغمبر کی طرح آتا تو خدا مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کرتا. تیرا بیٹا نبی سے بڑھ کر ہوگا، تیرا بیٹا پیغمبر سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ تیرا بیٹا بادشاہ بن کے
बादशाहों से बढ़कर होगा और खुदावंद खुदा उसको उसके बाप दाऊद का तख्त देगा और वो दाऊद के तख्त पर अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बादशाही करेगा और रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? साया करेगी। मर्द का तुखम नहीं, रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी और इस सबब से वो मलूते मुकद्दस जो होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। आज इस बात को ताली गल सुन के मारनी फिर मारनी। आज हम नारा लगाते हैं बादशाहों का बादशाह, हम इसलिए लगाते हैं, बाइबल कहती है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि खुदा जो है वो सबसे ऊपर है, लेकिन खुदा का इल्हाम कहता है कि यीशु गुनाह से भी ऊपर है, क्योंकि यीशु की सरिश्त के अंदर गुनाह नहीं है। यीशु की सरिश्त के अंदर गुनाह नहीं है। हाँ, अगर वो गुनाह के साथ पैदा होता तो वो गुलाम होता, अगर वो गुनाह के साथ पैदा होता तो वो नबियों की तरह होता, अगर वो गुनाह के साथ पैदा होता तो हम उसको बादशाह कहने का इख्तियार नहीं रखते थे। उसकी जात के अंदर गुनाह नहीं है, इसलिए वो बादशाहों का बादशाह है। जिसकी जात के अंदर गुनाह नहीं वो ही बादशाहों का बादशाह है। मैंने लफ्ज का मतलब क्या बताया था बादशाह का? जो सबसे ऊपर हो। नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, कौमें, कबीले, तमाम बनी आदम, गुनाह की सब पर हुकूमत थी, लेकिन जब जनाब मसीह आए तो यीशु की गुनाह पर हुकूमत थी। यीशु गुनाह पर सुप्रीम अथॉरिटी रखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी जात के अंदर, उसके तुखम के अंदर गुनाह नहीं है, और जिसके तुखम के अंदर गुनाह नहीं है वो बादशाह है। ये महलों के अंदर पैदा होने वाले गुलाम होते हैं, चरनी के अंदर जो पैदा हुआ है वही हकीकी बादशाह है। ये जो महलों के अंदर पैदा होते हैं ये गुलाम होते हैं, ये जो महलों के अंदर पैदा होते हैं ये बादशाह नहीं होते, ये जो महलों के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल के अंदर रहते हैं ये बादशाह नहीं होते, ये गुनाह के गुलाम होते हैं। ऐसी बादशाहत का क्या करना कि गुनाह के आगे घुटने टेक दे। बादशाह तो घुटने नहीं टेकते, बादशाह तो अपने गरूर के अंदर रहते हैं, बादशाह तो अपने मिजाज के अंदर रहते हैं। बादशाह लोग घुटने नहीं टेका करते, तो यीशु किस कदर बादशाहों का बादशाह होगा जिसके आगे गुनाह घुटने टेकना है। यीशु किस कदर बादशाह है। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं वो बादशाह बल्कि बादशाहों का क्या है? पहला जो हमने बात देखी कि यीशु की जात के अंदर गुनाह नहीं है, इसलिए वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि उनकी जात के अंदर गुनाह नहीं है। अगर वो जात के अंदर गुनाह आलूदा फितरत के साथ पैदा होते तो हमारे पास ये नारा छोड़ने का जवाब था, लेकिन पहली हमें वजह मिली कि यीशु की जात के अंदर गुनाह नहीं है, इसलिए वो बादशाहों का बादशाह है। अब दूसरी बात हम देखेंगे, इसके अंदर बादशाह होने का एक क्राइटेरिया ये भी है कि जब एक बादशाह किसी शहर से दूसरे शहर या किसी एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत जाता है तो बादशाह की बड़ी तैयारी की जाती है। ऐसा ही है, ये भी आज के दौर के अंदर ही देख लें। मरियम नवाज सदर पाकिस्तान किसी रोड से गुजरना हो तो ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है, ट्रैफिक रोक दी जाती है। कौन जा रहा है? बादशाह जा रहा है। रोड क्लीन किए जाते हैं, सड़कें साफ की जाती हैं, क्योंकि बादशाह की सवारी ने यहाँ से गुजरना है, बादशाह की सवारी ने आज यहाँ से निकलना है। लोगों को साइड पर किया जाता है, राह तैयार की जाती है, राह को बनाया जाता है, जो रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं उन्हें सीधा किया जाता है, हमवार किया जाता है, ताकि बादशाह की सवारी जो है वो ठीक तरीके से गुजरे। लोगों को पता चले कि बादशाह जा रहा है, लोगों को पता चले कि बादशाह की सवारी जा रही है, लोगों को पता चले कि बादशाह की सवारी ने आज यहाँ से गुजरना है, ताकि लोगों को पता हो कि बादशाह क्या होता है। मालूम होता है कि बादशाह का एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक लंबी तैयारी, एक बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। पहले उसका प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है, पहले उसकी गाड़ियां, नौकर चाकर, उसका सारी सिक्योरिटी जो है वो तैयार होती है, तब जाकर बादशाह को शाहाना अंदाज से, चाहे वो किसी मुल्क का सदर है, वजीर आजम है, वजीर आला है, बादशाह है, डिक्टेटर है, कोई भी है, तब जाकर उसको एक पूरे शाही अंदाज से उसकी सवारी में बैठाया जाता है और सवारी का आगाज किया जाता है कि बादशाह की सवारी जा रही है और आए मेरा यीशु आसमान से, तो हो नहीं सकता उसकी तैयारी ना हो।
आए मेरा यीशु आसमान से, तो हो नहीं सकता उसकी तैयारी ना हो। आए मेरा यीशु आसमान से, तो हो सकता है कि खुदा उनके लिए तैयारी ना करे। आए मेरा यीशु खुदावंद आसमान से, तो हो नहीं सकता कि खुदा खामोश ठहरे। आए मेरा खुदावंद आसमान से, तो हो नहीं सकता कि खुदावंद जो है उनकी तैयारी ना करे। किताब मुकद्दस फरमाती है कि यीशु मसीह वो दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसकी तैयारी करने के लिए कई हजार साल का वक्त लगा, जिसकी तैयारी करने के लिए खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा तरह बतरा नबियों के जरिया से कलाम किया। खुदा ने यीशु की तैयारी करने के लिए, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब गुनाह इस दुनिया के अंदर आया, जब बदी इस दुनिया के अंदर आई, तो आदम और हवा की जब अदालत की जाती है, तो किताब मुकद्दस फरमाती है खुदा उनसे सवाल करता है और सवाल और उनकी अदालत करता है, और अदालत करते हुए क्या कहता है, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा, अदावत डालूंगा, और औरत की नस्ल से जो आएगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। लिहाजा साबित हुआ कि इस राह की तैयारी जो है वो खुदा ने आगाज कर दी, इस राह की तैयारी जो है वो खुदा ने शुरू कर दी। और इसी के साथ ही मूसा आता है, एलिया आता है, अलीशा आता है, यशुआ आता है, नबियों की एक फहरिस्त आती है। यशाया आकर कहता है देखो एक कुंवारी हामिला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। फिर वो कहता है देखो हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और खुदा उसको उसके बाप दाऊद का तख्त देगा और वो दाऊद के तख्त पर लोहे के असा से हुक्मरानी करेगा और उसकी हुकूमत का इंतहा ना होगा। और आगे जाकर यूहन्ना इस्तबागी कहता है इन आखिर के ऊपर जब नबूवत जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचती है, तो यूहन्ना उस नबूवत की आखिरी कड़ी बनते हुए कहता है कि खुदावंद की राह क्या करो, खुदावंद की राह क्या करो, तैयार करो। मैंने कैसे बताया कि बादशाह की सवारी के लिए राह तैयार करना जरूरी है। यूहन्ना कहता है खुदावंद आ रहा है, बादशाह आ रहा है। जिले इलाही का मतलब क्या होता है? खुदा का अक्स, खुदा का साया। सो मालूम हुआ कि जो तख्त पर बैठता है वो खुदा का साया होता है। जो तख्त पर बैठता है वो खुदा का क्या होता है? साया। अब ये जिले इलाही को जिले इलाही बनाता कौन है? इंसाफ। जब कोई फरियादी बादशाह के हुजूर जाता था तो उसे जिले इलाही कहकर मुखातिब करता था कि आप तख्त पर बैठे हैं, आपको खुदा ने बैठाया है, लिहाजा आप खुदा के अक्स हैं, खुदा का खौफ रखते हुए मेरा फैसला कर दीजिए। सो मालूम हुआ कि इंसाफ एक ऐसी चीज है जो बादशाह को खुदा जैसा बनाती है। जो बादशाह अच्छा इंसाफ करता है या करता था वही जिले इलाही कहलाता था। खाली सारी कोई जिले इलाही नहीं बन जाता। जिले इलाही बनने के लिए आपको इंसाफ करना पड़ेगा। और बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि खुदा की ज़बूर की किताब के अंदर आया है कि उसके तख्त की बुनियाद क्या है? अदल है। यानी कि खुदा के तख्त की जो बुनियाद है वो इंसाफ पर कायम है कि वो किस कदर गैरतमंद और गयूर है। सो मालूम हुआ कि बादशाह होने के लिए जिले इलाही बनना पड़ता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तारीख हमें इस बात की गवाही देती है कि बड़े बड़े बादशाह आए हैं, बड़े बड़े बादशाहों ने जिले इलाही होने का दावा किया है। यहाँ तक कि रोमी कैसरों ने बादशाहों ने तो अपने आप को खुदा भी बनाया है। लेकिन याद रखिएगा ये कैसे खुदा हैं जो 60 साल रहे, 70 साल रहे, 80 साल रहे और आखिर को चल दिए अगले घर। ये कैसे बादशाह हैं जो बीमारी लग जाए तो बादशाहत निकल गई, जो बुखार हो जाए तो बिस्तरे मर्ग के ऊपर चले जाए। तो ऐसे कौन से बादशाह हैं जनाब? ये बादशाहत नहीं है। किताबे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस हमें एक हस्ती का बयान देती है और वो बयान ये है कि आज से 2025
25 साल पहले मकाम जर्नी के ऊपर हमें एक ऐसी हस्ती का जिक्र मिलता है जो तमाम बादशाहों से अफजल है, जो तमाम बादशाहों से मोतबर है, जो तमाम बादशाहों से आला है, जो तमाम बादशाहों से कीमती है, जो तमाम बादशाहों से हिकमत वाली है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा जैसा नहीं, क्योंकि वो खुद खुदा है। यीशु खुदा के जैसा नहीं है, वो खुद खुदा है, याद रखिएगा। यीशु खुदा की तरह नहीं है, वो बजाते खुद खुदा है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के अंदर आया है कि देखो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। लिहाजा मालूम हुआ कि यीशु मसीह जिले इलाही से कई ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि यीशु खुद खुदा है। यीशु खुद खुदा है। किस किस को मेरी बात की अब तक समझ आई? आमीन। यीशु खुद खुदा है। अब आखिरी बात करूंगा। अगर तो बात आ जाए ना यीशु मसीह के फजाइल बयान करने की, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं करता चला जाऊंगा और आप सुनते चले जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि खुदा का कलाम बेहद है, इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई जो एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका, ये इसका जो मुतकल्लम है, इसका जो लिखवाने वाला है, उसकी कोई हद नहीं है, तो हो नहीं सकता इसकी भी कोई हद हो, ये भी बेहद है। लिहाजा हम जिसे कहते हैं पंजाबी से मोटियां मोटियां गल्लां ते गौर करांगे ते कलाम का इख्तिताम करांगे, आखिरी बात के ऊपर गौर करेंगे। किताब मुकद्दस क्या फरमाती है? क्या फरमाती है कि देखो एक बारी हामिला होगी और उसके क्या होगा? बेटा होगा, वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। अब बात को जरा समझिएगा। किताब मुकद्दस हमें इस बात की गवाही देती है कि इस दुनिया के अंदर इंसान की फितरत इस तरह की है कि हमारा किसी आले मर्तबे वाले के साथ रिलेशन बन जाए ना, तो साड़ी आकड़ नहीं फड़ी जाती। ਅਸੀਂ किसी SP DSP ਦੇ ਕੋਲ बैठ जाइए ना, तो साड़ी बाਹਾਂ चौड़ियां हो जाती है, साड़ी तलकदारी बड़ी वड्डी, साड़ी तलकदारी की है बहुत वड्डी है भाई। साढ़े SP DSP लोगों के बीच बैंक खिलौने, हमारा उमरा उजरा के साथ उठना बैठना है। मैं वज़ीर आज़म तक अप्रोच रखता हूँ, मैं सदर तक अप्रोच रखता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये सब जो हैं ये नाकस हैं। कामिल एक ही है। कैसे कामिल एक ही है? क्योंकि एक बादशाह का हुक्म दूसरे बादशाह की सल्तनत के ऊपर नहीं लगता, एक बादशाह की अथॉरिटी दूसरे बादशाह की सल्तनत की अथॉरिटी पर नहीं लगती। याद रखिएगा खुदावंद यीशु वो वाहिद बादशाह है जिसकी अथॉरिटी हर एक मुल्क पर है। खुदावंद यीशु वो वाहिद बादशाह है जिसकी अथॉरिटी हर एक सल्तनत पर है। खुदावंद यीशु वो वाहिद बादशाह है जिसकी अथॉरिटी हर एक जो है वो मुल्क के ऊपर है। यहाँ बादशाह प्रोटोकॉल के बगैर बाहर निकल आए ना, तो अवाम पहचानने से इनकार कर देती है। यीशु वो वाहिद बादशाह है जिसके पास कोई फौज नहीं थी, दुनिया फिर भी उसे पहचानती थी, जिसके पास पीछे कोई बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां और भाले लिए हुए खड़ी नहीं होती थी, लेकिन लोग उसको दूर से पहचान लेते थे कि वो देखो खुदावंद आ रहा है। लोग उसे दूर से उसके कदमों की आवाज पहचान लेते थे। लोग आज बादशाह को बादशाह की अथॉरिटी के बगैर पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु वो वाहिद ऐसी हस्ती है जिसको दूर से इब्लीस देखकर चलाता थरथराता है कि ए खुदा ताला के बेटे, ए यीशु तो वक्त से पहले हमें क्यों अजाब में डालने आता है। लिहाजा मालूम हुआ कि बादशाह के प्रोटोकॉल के बगैर बादशाह को कोई नहीं पहचानता, लेकिन इस बादशाह को ना प्रोटोकॉल की जरूरत है, इस बादशाह को ना शाही अंदाज की जरूरत है, इस बादशाह को ना शाही दूसरी चीजों की जरूरत है। ये बादशाह खुद अपने बलबूते पर बादशाह है, क्योंकि ये आसमान के खुदा का बेटा है, ये अपने बलबूते पर है। बड़े लोग कहेंगे कि जनाब गल ते फिर उठी जाएगी, पैसियां की गल तो फिर होती। याद रखिएगा पैसों की जरूरत उसे होती है जो महदूद हो, जिसका इख्तियार, मिसाल के तौर पर अगर मैंने बाहर से कोई चीज लेनी है तो मैं दुकानदार के पास जाकर कहूँगा वो मुझे दे देगा। जाहिर बात है मैं पैसे दूंगा फिर वो मुझे देगा। यीशु को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यीशु को दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु पूरी दुनिया पर इख्तियार रखता है।
यीशु पूरी दुनिया पर इख्तियार रखता है, सब चीजें उसकी है। लिखा है उसी के वसीला से और उसी में सब कुछ क्या है, तख्लीक हुआ है। तो जिसके वसीला से सब कुछ तख्लीक हुआ है, उसको पैसों की जरूरत है, उसको दौलत की जरूरत है, उसको सोने चांदी की जरूरत है, उसको खजानों की जरूरत है। जब उसको जरूरत पड़ती है वो मछली को हुक्म लगाता है, मछली आकर सीखे मुहैया कर जाती है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो हुक्म लगाता है तो आसमान से बारिश हो जाती है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो फिर 5 रोटियों 2 मछलियों से वो 15,000 को भी खाना खिलाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी, वो बादशाहों का बादशाह इसलिए है क्योंकि वो सारी दुनिया पर अपना इख्तियार रखता है, वो सारी दुनिया पर अपना इख्तियार रखता है। अब लिखा है दानियल ने एक ख्वाब देखा और बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा। नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखता है, मूरत के अंदर आया कि इख्तिसार के अंदर चलूंगा कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा नबूकदनेस्सर ने, दानियल की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर, कि मूरत का सर जो था वो सोने का था, सीने और बाजू जो थे वो चांदी के थे, रान और शिकम जो था वो तांबे का था, नीचे जो हिस्सा था वो लोहे का था। अब दानियल देखता है कि बादशाह तूने देखा आसमान से एक पहाड़ से एक पत्थर गिरता है और आकर वो उस मूरत की बुनियाद पर लगता है वो धड़म से नीचे गिर जाती है। सो मालूम हुआ सोने का सर इराक की हुकूमत, चांदी ईरान की हुकूमत, तांबा सिकंदर आज़म यूनान की हुकूमत, लोहा रोम की हुकूमत, पत्थर आप सब की हुकूमत है जो उस बुनियाद पर आकर लगा। और जब लगा तो याद रखिएगा यीशु मसीह की बादशाहत इस किसी मुल्क की नहीं है, यीशु मसीह की बादशाहत किसी एक खास फिरके की नहीं है, यीशु मसीह की बादशाहत पूरी दुनिया के अंदर है, क्योंकि यीशु के मानने वाले आज हर एक खित्ते के अंदर हैं, यीशु के मानने वाले आज हर एक सल्तनत के अंदर बैठे हैं, और जहां जहां उसके मानने वाले हैं उसकी सल्तनत वहां वहां कायम है, क्योंकि जहां जहां उसका नाम लिया जा रहा है वहां वहां इस बात की गवाही दी जा रही है कि यीशु हमारे साथ है, वो इमैनुअल है। और जब वो इमैनुअल है तो याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग किसी एसपी डीएसपी के साथ खाना खा लेना तो लोगों की आकड़ नहीं पड़ी जाती। आप कोई आम लोग नहीं हैं, आप कोई गली मोहल्लों के ऐरे गहरे नथु लोग नहीं हैं, मसीही ईमानदार कोई आम लोग नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ नबी पैगंबर नहीं है, इनका ताल्लुक किसी एसपी डीएसपी के साथ नहीं, इनका ताल्लुक किसी मुल्क के सदर के साथ नहीं, इनका ताल्लुक खुद खुदा के साथ है। और जिसका ताल्लुक खुद खुदा के साथ हो नहीं सकता वो आम हो नहीं सकता वो आम हो। लिहाजा आखिर के ऊपर एक शेर कहूंगा और कलाम का इख्तिताम करूंगा कि यीशु के मानने वालों का आज 2025 साल हो गए हैं, कोई बाल नहीं बाका कर पाया, तो मैं यूं कहूंगा कि मिटते नहीं हैं हम मिटा कर देख लो, मिटते नहीं हैं हम मिटा कर देख लो, खाक में भी अमर है उठा कर देख लो।